Hello guys, I welcome you all to the day 178 of our series, and in today's session we are going to practice some more sentences based on relative pronoun. So let's get started. And here is your yesterday's task. So let's do this first. Here you were supposed to to encircle the correct word. So first is the unit is dash. The unit is defective, not defaulty. Next is this particularly abnormal? Next one is the ward is in the maternity unit, not system. And next one is arthritis can be hereditary, not heredity, it's hereditary. Next is the effects are short-lived, not short-living. Next is it is your immune system, not immunity system. Immunity is noun, so it is your immune system. Now here is your another exercise. Here you are supposed to complete the sentences. The first one is dash therapy has been used, gene therapy. Therapy has been used to restore the function of aging brain dash in monkeys. Aging brain cells in monkeys. Next is the problem was caused by the dash of the genes mutation. By the mutation of the genes as they were passed on. Next is the doctors dash a tube inserted a tube into the patient's stomach. Next is the body has to be able to dash the abnormal cells. Fight. Either you can say fight or repel. Repel. Next is dash disorder is a disease caused by an abnormality in someone's DNA. So it would be a genetic disorder. Next is if an illness is passed from parents to their children, it is a problem of dash. It is a problem of heredity. Heredity. Next one is the technique involves the dash of genes for nerve growth into the brain. The technique involves the insertion of genes. And last one is in dash science, in molecular science, a dash is a stable unit. A molecule is a stable unit comprising two or more atoms. And now move to the actual session where we left our previous session, and that is relative pronoun. We are doing relative pronouns, so let's get started. And here it is given that you can use who as a relative pronoun. You can use who as a relative pronoun for people only, not for things. For things you have to go by that and which I'll come on later. But now let's talk about who. And here is a statement given. वो लड़की जो मुझसे अगले मकान में रहती है एक डॉक्टर है. और यहाँ पे ये जो है ना जो, यही है who. और यहाँ पे जो को ऐड करके इसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है इसके बारे में, उस लड़की के बारे में. तो अब यहाँ देखिए द वुमेन, जो की जगह हमने यूज किया हु, और उसके बाद में हमने इसके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी यहाँ पे हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी, और उसके बाद में कि ये एक डॉक्टर है, इज अ डॉक्टर. तो अभी आपको ये सेंटेंस की जो अरेंजमेंट है वो समझ में आ गई होगी. द वुमेन इज अ डॉक्टर, और इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है दैट शी लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी. और इनको हमने दो सेंटेंसेस को एक बनाया है बाय यूजिंग हु. तो यहाँ पे आप देखोगे अभी तक आपने सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस किए हैं, और जैसे ही आपको रिलेटिव प्रोनाउन को अच्छे से यूज करना आ जाएगा, इन दैट केस यू विल बी एबल टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एज वेल. क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का आना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे देखिए एक और चीज पे हम फोकस करेंगे कि जैसे ये है हु वॉज आवर रिलेटिव प्रोनाउन हियर. I'm writing it as RP. So who was our relative pronoun here in this statement? And its subject is the woman. So,
I'm writing just subject here. It is understood that it can either be a noun or a pronoun. And verb will always agree, verb that follows a relative pronoun will always agree to the subject of that relative pronoun. यानी कि अभी मैंने ये कहा है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन था, इसके जस्ट पहले जो भी हमारा नाउन प्रोनाउन प्रेजेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट, और इसके अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आएगी ये एग्री करेगी। अब यहाँ पे क्योंकि द वुमन एक की बात हो रही थी, सिंगुलर था, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड सिंगुलर वर्ब हियर। वी हैव एडेड एस आफ्टर दिस वर्ब लिव, लिव्स किया है हमने, यहाँ पे सिंगुलर बनाया है वर्ब को एस लगा के। लेकिन अगर यहीं पे मैं ये कहती द विमेन, द विमेन, अब ये प्लूरल हो गया, जैसे ही मैंने ई लगाया वो प्लूरल हो गया। अब हमें ये करना था द विमेन हु लिव, यानी कि बहुत सारी औरतें जो रहती हैं, तो अब हम यहाँ पे लिव करेंगे ना कि लिव्स, क्योंकि अब ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल हो गया है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द प्लूरल वर्ब टू सेटिस्फाई आवर सब्जेक्ट। तो यही हमें ध्यान देना है कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले अगर कोई सब्जेक्ट आता है, देखिए हर केस में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट आपको यहाँ मिलता है जस्ट पहले एट द एडजेसेंट पोजीशन इन द मैक्सिमम केसेस, तो वहां पे इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो इसी सब्जेक्ट के लिए आएगी, क्योंकि हम उसी के बारे में तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वर्ब भी हम इसी के अकॉर्डिंग तो यूज करेंगे। तो इस चीज पे ध्यान देना है आपको। अब आपके पास दो सेंटेंसेस हैं, अब ये काम करिए, इन दोनों सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करिए इंग्लिश में बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। एक ही सेंटेंस रखना, आपको दो डिफरेंट सेंटेंसेस नहीं बनाने। आई एम श्योर आपने कर लिए होंगे। तो चलिए आंसर्स पे आते हैं। फर्स्ट है, जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वो लंबे समय तक जीते हैं। So first of all, let me clear the doubt of verb here. Although I have discussed it various times, but still I'm clearing it for the sake of your understanding, for the sake of your clarity. So singular verbs always take as es or ies after them, while plural verbs are written in their intact form. Means plural verb में ये सब नहीं यूज किए जाते s या es. अब वापस आते हैं, जो लोग, यानी कि, और यहाँ भी देखिए है, यानी कि अब हम यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा दोज पीपल, ये हो जाएगा दोज पीपल हु, और जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं हु डू फिजिकल एक्सरसाइज कॉमा लिव लॉन्गर। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस दोज पीपल हु, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन था क्योंकि इसके पहले दोज पीपल प्लूरल सब्जेक्ट हमने यूज किया है, दैट्स व्हाई वी हैव पुट द प्लूरल वर्ब हियर टू सेटिस्फाई आवर सब्जेक्ट। डू प्लूरल वर्ब होती है, इसकी सिंगुलर वर्ब, इसका सिंगुलर वर्जन हो जाता है डज। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस को अगर आप देखोगे तो यहां देखिए द पर्सन हु डज, इस बार हम यहाँ पर डज को यूज करेंगे क्योंकि इस बार हमारे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट है वो है द पर्सन। अब यहाँ पे सिंगुलैरिटी की बात हो रही है, हु डज फिजिकल एक्सरसाइज कोमा, और इसके बाद में लिव्स लगाएंगे हम, लिव्स लॉन्गर। अब यहाँ पे भी लिव के साथ में हमने एस को यूज किया, यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब यूज की, क्योंकि दोनों ही हमने इसके लिए यूज की है। द पर्सन जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले था, जिसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को यूज किया। लेकिन आप फर्स्ट में देखोगे तो यहाँ पे दोनों ही जगह हमने प्लूरल वर्ब को यूज किया है। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। कुछ और एग्जाम्पल्स पे आते हैं आगे। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, अभी आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब एक काम करिए, जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीन को पॉज कीजिए और ये देखिए दैट हाउ मेनी ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आर इनकरेक्ट, कितने इनमें से इनकरेक्ट हैं, और अगर इनकरेक्ट है इन दैट केस यू हैव टू रेक्टिफाई देम ऑल्सो। तुम्हें इनको रेक्टिफाई भी करना है, करेक्ट भी करना है। आई एम श्योर आपने कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज she is one of the noblest women, and here that is our relative pronoun and its subject is plural, that's why we have to use a plural verb after it.
and the usage of has is incorrect here, so we have to use have. She is one of the noblest women that have ever lived on this earth. अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ है. मैं इस पे भी आऊंगी कि यहाँ पे दैट को हमने क्यों यूज किया. अभी तो मैंने कहा था कि दैट को हम सिर्फ हु को यूज करते हैं, उस पे भी हम आएंगे. अभी के लिए एक बार आप दैट लगाइए, अभी के लिए एक बार सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देखिए आप रिलेटिव प्रोनाउन का. नेक्स्ट इज ही इज वन ऑफ दोज हु डज व्हाटएवर दे से. अब यहाँ पे जो हु है, दिस इज आवर रिलेटिव प्रोनाउन and the subject of this relative pronoun is plural. Those is considered as a plural pronoun, so we have to use plural verb here. Does is incorrect here. We have to use do. Who do whatever they say. Now the statement is correct. Next is that's the girl who lived in the next colony. Here again the subject of our relative pronoun is singular, the girl. That's why we have to use lives in the next colony. Now the statement is correct. Moving to the next one, I, who is a teacher, teaches here. Okay, we'll do this statement at the last. Now let's move to the next statement. I have read the books that is on the table. So that are on the table. Next is God helps those who helps themselves. So here the subject of who is those, that is plural. So we have to use help rather than using helps. God helps those who help themselves. अब यहाँ देखिए God, we always use a singular verb for God. God के लिए हमेशा हम singular verb यूज करेंगे क्योंकि ये माना जाता है कि ये एक ही एंटिटी है, तो इस वजह से यहाँ पे हमेशा singular verb यूज करेंगे. हमने helps लगा दिया, लेकिन आगे चलते हैं स्टेटमेंट में तो यहाँ पे those की बात हो रही है. who के जस्ट पहले दोज आया है, तो इस वजह से यहाँ पे प्लूरल हो गया, तो अब हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे who help themselves. नेक्स्ट में आते हैं लास्ट में. रजत अबाइडेड बाय. टू अबाइड बाय मीन्स टू कॉन्फॉर्म, टू कंप्लाई ऑल द रूल्स. सभी रूल्स को, टू फॉलो ऑल द रूल्स, सभी रूल्स को फॉलो करना, वो होता है अबाइड बाय. सो रजत अबाइडेड बाय ऑल द रूल्स which was explained to him before the program. And here which is acting as a relative pronoun and its subject is the rules, all the rules. So here subject is given in its plural form, that's why we have to use were. So all the rules which were explained to him before the program. Now let's move to the sentence number 4 which we have excluded earlier. So here the subject is I and the verb is given, the verb here which is given is in present tense. is को हम present tense में use करते हैं. लेकिन अब देखिए I के साथ में हम क्या कहते हैं. अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक टीचर हूँ तो मैं क्या कहूंगी? I is a teacher. क्या मैं ये कहूंगी? नहीं. I am a teacher. यानी कि I के लिए present में अगर कोई verb use होती है so that will be am only. वो सिर्फ am ही होगी. तो यहाँ पे who is acting as our relative pronoun and its subject is I. That's why we have to use the verb which satisfies our subject and that verb is am. So now this is correct that I who am your teacher. अब यहाँ पे हमने helping verb देख ली. Now let's move to the main verb. टीच, मेन वर्ब भी तो गिवन है ना यहाँ पे, टीचर्स, और मेन वर्ब को यहाँ पे सिंगुलर बनाया गया है. लेकिन अब तक हमने ये पढ़ा है कि I अपने साथ में प्लूरल वर्ब्स लेता है. I have बोलते हैं हम, I has नहीं बोलते कभी भी, है ना. I do बोलते हैं, कभी I does नहीं हम बोलते. तो इस वजह से जो मेन वर्ब होती हैं I के लिए यूज, वो हमेशा ही प्लूरल यूज होंगी. तो यहाँ पे भी टीचर्स ना होके टीच हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हो जाएगा टीच. अब जाके सेंटेंस करेक्ट हुआ है that I who am a teacher teach here. तो यानी कि जितने हमारे वर्ब आएंगी वो इसके अकॉर्डिंग ही आएंगे जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट होगा उसके जस्ट पहले जो भी सब्जेक्ट गिवन होगा. नेक्स्ट में आते हैं. अभी आपके पास एक एक्सरसाइज है. अभी देखिए हमने इंग्लिश टू इंग्लिश करेक्ट करना सीख लिया. अभी आप ट्रांसलेट करना और सीखिए. जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और बहुत ही इजी एग्जांपल्स हैं और इनको अटेम्प्ट जरूर करना. जस्ट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्व्स. आई एम श्योर आपने कर लिया होगा. तो चलिए आंसर्स पे आते हैं. द फर्स्ट वन इज मुझे वो लोग पसंद नहीं जो हमेशा शिकायत करते हैं. जो
यानी कि यहाँ पे हमारा who ये यूज होना है। और किन की बात कर रहे हैं? उन लोगों की जो हमेशा शिकायत करते हैं। अब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो ये इस तरह से बनेगा, I don't like those people who complain। अब यहाँ पे मैं सिर्फ कंप्लेन लिख रही हूँ, मैं कंप्लेन्स नहीं कर रही, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे दोज पीपल की बात हो रही है। द सब्जेक्ट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इज गिवन प्लूरल, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज अ प्लूरल वर्ब टू compensate for that subject. So I don't like those people who complain all the time. Moving to the next sentence, एक आर्किटेक्ट वो होता है जो बिल्डिंग्स बनाता है। An architect is someone। एक आर्किटेक्ट वो होता है is someone जो बिल्डिंग्स बनाता है। तो ये जो के लिए हम लगा रहे हैं यहाँ पे who, और ये हो जाएगा who designs, और makes भी आप यूज कर सकते हो। Designs, I'm adding s here because now we have to use singular verb because someone is given, and we have already studied in our previous sessions that someone, everyone, no one, or anyone, all these are considered as singular subjects. That's why we have to use singular verb for these subjects. So someone who designs buildings. Now let's move to the third statement. क्या तुम किसी ऐसे को जानते हो जिसे कार खरीदनी हो? क्या तुम, do you know someone, or you can also say that do you know anyone, both are correct here. Do you know someone or do you know anyone जिसे, अब जिसे के लिए भी हम who को यूज करेंगे, जो, जिसे, इन सब के लिए हम who को यूज करते हैं। So who wants to buy a car। और यहाँ पे भी देखिए wants को हमने यूज किया है, s को हमने यूज किया है, क्योंकि चाहे someone हो चाहे anyone हो, कुछ भी आप यूज करो, the verb has to be in its singular form. Next is Marie Curie वो महिला थी जिसने रेडियम को खोजा था। So it would be Marie Curie was the woman, वो महिला थी। अब एक की ही बात हो रही है, मैरी क्यूरी की ही बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे सिंगुलर लिया है वुमेन हु। खैर यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, हमारा खोजा था, तो ये हो जाएगा हु डिस्कवर्ड रेडियम। तो काफी सिंपल एक्सरसाइज थी ये। नेक्स्ट में मूव करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स। और थिंग्स के लिए, चीजों के लिए हम यूज करते हैं या तो दैट को या विच को, दोनों में से आप कोई भी यूज करो, दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन आप यहाँ पे हु को नहीं यूज करोगे थिंग्स के केस में कभी भी। जल्दी से आप फिर से स्क्रीन को पॉज कीजिए और स्टार्ट कीजिए, अटेम्प्ट दीजिए अपना ऑनेस्ट अटेम्प्ट। सो आई एम श्योर आपने कर लिया होगा। तो चलिए आंसर्स पे आते हैं। फर्स्ट वन इज मुझे वो कहानियां पसंद नहीं जिनका अंत अच्छा नहीं होता। तो अब तक तो खैर आपको पता लग ही गया होगा कि ये जो रहते हैं वर्ड्स जो, जिसे, जिसने, जिनका, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इन्हीं के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज करते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा मुझे वो कहानियां पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दोज स्टोरीज। I don't like, या फिर सिंपली भी आप ये कह सकते हो I don't like stories, I don't like those stories, या फिर I hate those stories, that would be also correct. I hate those stories which or that, you can use either of them, which or that have unhappy endings. Unhappy endings, अब यहाँ पे आप देखिए, because we have discussed about stories in this statement, that's why we have used the plural verb, that is have. हमने have को यूज किया, हमने यहाँ पे has को नहीं यूज किया।
नेक्स्ट है वो एक ऐसी कंपनी के लिए काम करती है जो फर्नीचर बनाती है। अब यहाँ पे फर्नीचर कौन बनाती है? कंपनी बनाती है, तो यहाँ पे कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज ईदर दैट और व्हिच। सो इट वुड बी शी वर्क्स for a company that or which makes furniture, और यहाँ पे क्योंकि कंपनी की बात हो रही थी, एक ही कंपनी की बात हो रही थी ना, तो इस वजह से हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को यूज किया, मेक्स हमने यूज किया है यहाँ पे। नेक्स्ट इज जो मशीन खराब हो गई थी वो अब काम कर रही है। द मशीन दैट जो खराब हो गई थी। अच्छा, खराब होने के लिए, मशीन के खराब होने के लिए हम ब्रेक डाउन ये फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि पास्ट में है, खराब हो गई थी, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ब्रोक डाउन। द मशीन दैट broke down is working now, is working again और now फिर से नहीं दे रखा, अब है तो हाँ now। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट में आते हैं, क्या वह तुम्हारी कार है जो बाहर खड़ी है? तो ये हो जाएगा is that your car, और अब यहाँ पे विच मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे ये जो दैट है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये इसके लिए यूज हुआ है, क्या वह, ये पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये यहाँ पे एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हुआ। आप यहाँ पे इसको रिप्लेस नहीं कर सकते विच के साथ में। इज दैट योर कार, जहां पे हम ऐसे पॉइंट करके कुछ चीजें बताते हैं ना, तो वहां पे हमेशा दिस, दैट और दीज दोज को यूज किया जाएगा। सो इज दैट योर कार। अब यहाँ पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। फर्स्ट लेट मी क्लियर द स्क्रीन। So is that your car which or that is parked outside? Is parked outside. अब यहाँ पे चाहे which यूज करो चाहे that करो, और इसके पहले your car, एक ही कार की बात कर रहे हैं, that's why we have used singular verb here. is, इसको हमने यूज किया है। सो आई होप अभी आपको कोई यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी वर्ब को लेके, वर्ब से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अभी 2 सेंटेंसेस और हैं, जल्दी से इनको और आप ट्रांसलेट कर दो। अगर ये दोनों आपने करेक्ट कर लिए दैट मीन्स आप अच्छे से समझ गए, और अगर नहीं हो पाते हैं आपके करेक्ट, तो मैं यही कहूंगी कि आप प्रीवियस सेशन प्लस ये वाला सेशन दोबारा से देखो। सो आई एम श्योर आपने कर लिए होंगे। तो चलिए आंसर्स पे आते हैं। फर्स्ट इज, क्या तुमने कभी उन लोगों से बात की है जो हमसे अगले मकान में रहते हैं? तो देखिए, क्या तुमने कभी उन लोगों से बात की है, ये हो जाएगा have you ever spoken to the people, I'm writing people in the next line, to the people who, हमसे अगले मकान में रहते हैं, तो ये हो जाएगा who live the next door, who live the next door। अब यहां देखिए who, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके पहले जो सब्जेक्ट है people, लोगों, यानी कि प्लूरल था, that's why we have used a plural verb here। तभी हमने lives नहीं किया, यहाँ पे सिंपल live को लिखा है। नेक्स्ट में आते हैं, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो तुरंत करवाएं। those who, अब those है यहाँ, तो हम यहाँ पे have यूज करेंगे। those who have not registered yet, वो तुरंत करवाएं। should do at once। आप यहाँ पे must भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस मूड में ये बात कह रहे हो। must भी करेक्ट होगा। तो ये थे हमारे ट्रांसलेशंस। अभी देखते हैं हम थोड़ा सा इनको और अच्छे से डिटेल से। तो देखिए who या whom दोनों को हम लोगों के लिए यूज करते हैं। which को हमेशा ही थिंग्स के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन that
एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये लोगों के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में हम थिंग्स के लिए यूज करते हैं। जहां ये पीपल के लिए यूज होगा वो एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनको हम करेंगे बाद में। अब जैसे कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। लॉर्ड थॉमसन हु इज, हियर दिस वर्ब इज यूज्ड फॉर लॉर्ड थॉमसन। तो यहाँ पे एक सिंगुलर के लिए ये वर्ब यूज हुई है, तो हमने इज लिखा है। लॉर्ड थॉमसन हु इज 76, जिनकी एज इतनी है। और आगे फिर से देखिए, यहाँ पे फिर से हमने हैज को यूज किया है। वी डिडंट यूज हैव हियर, क्योंकि यहाँ पे फिर से ये इसी को एड्रेस कर रही है। हमारा इसका सब्जेक्ट वही है, उसी के बारे में बता रही है कि वो अभी रिटायर हुए हैं। नेक्स्ट है दिस इज द हाउस विच जैक बिल्ट। अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में वर्ब नहीं है। अब यहाँ पे जैक आ गया और उसके बाद में ये वर्ब आई है, तो अब यहाँ पे यही इसका सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जैक के अकॉर्डिंग लगेगी वर्ब। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि मैक्सिमम केसेस में आप ये देखोगे कि कोई रिलेटिव प्रोनाउन है कि उसके जस्ट पहले सब्जेक्ट होगा और उसके तुरंत बाद में ही वर्ब होगी। ये तीनों चीजें आपको ना एक एडजेसेंट पोजीशन पे मिलेंगी, लेकिन हर केस में ये हो जरूरी नहीं है। तो नेक्स्ट में जैसे कि दिस इज द हाउस, ये वो घर है विच जैक बिल्ट, जिसको जैक ने बनाया था। और अगर इसको आप इस तरह से लिखते दैट दिस इज द हाउस विच was built by Jack। अब ये इसी फॉर्मेशन में आ गया, इसी फॉर्म में आ गया जो हम अब तक पढ़ के आए हैं। विच के पहले हाउस, तो हाउस के लिए हमने was को यूज किया है यहाँ पे। तो अब आप देखिए यहाँ पे was built, ये पैसिव बन गया। इफ यू हैव रिमेम्बर्ड then we have done this B plus V3 combination, that B plus V3 will always make a sentence passive। ये हमेशा ही एक सेंटेंस को पैसिव बना देते हैं, तो वही है was built, हमने पैसिव में कर लिया अभी। नेक्स्ट में आते हैं we had fish and chips which I always enjoy। अब यहाँ पे फिर से which को यूज किया गया है दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए कि ये जो डिश है इसे मैं हमेशा ही इंजॉय करती हूँ। We had, ओके हमने ली थी ये, तो इसको मैं हमेशा एंजॉय करती हूँ। नेक्स्ट है Have you ever spoken to the people who live, ओके हमने ये दो सेंटेंसेस किए हैं अभी। थर्ड पे आते हैं There is a program on tonight which you might like, जिसको तुम पसंद करोगे। अब जहां पे ये आ रहा है ना, जो, जिसे, जिसने, जिसको, जिन्होंने, तो ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस ही हैं जिनसे हम और आगे एक सेंटेंस को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने विच को यूज किया है क्योंकि यहाँ पे आज रात के प्रोग्राम की बात हो रही थी। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉल मैन हु जस्ट केम इन। अब यहाँ पे टॉल मैन पर्सन है, तो पर्सन के लिए हम हु को यूज करते हैं, पीपल के लिए हु जस्ट केम इन, जो अभी अंदर आया है उसका नाम क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में आते हैं हैव यू गॉट समथिंग दैट विल गेट इंक आउट ऑफ अ कारपेट। कारपेट पे इंक गिर गई है, तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो कारपेट पे गिरी हुई इस इंक को बाहर निकाल सके। तो यहाँ पे भी खैर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन था, इसका सब्जेक्ट समथिंग था, लेकिन इसके बाद में विल गिवन है यहाँ, और विल का कोई सिंगुलर प्लूरल वर्जन नहीं होता, वो सबके लिए सेम रहेगा। नेक्स्ट इज दिस इज मिस रॉजर्स हु इज ज्वाइनिंग द फर्म नेक्स्ट वीक। यहाँ देखिए हु इज ज्वाइनिंग, तो यहाँ पे इज यूज किया है हमने फॉर मिस रॉजर्स। नेक्स्ट इज in 1908 Ford developed this model T car which sold. Here we are using which as a relative pronoun because here the thing we are talking about is an object. यहाँ पे एक thing है, that's why we have used which as a relative pronoun. So which sold for $500. Next is the woman who does my hair. Woman, ये सिंगुलर था, that's why we have used does instead of do. Who does my hair, और उसके बाद में फिर से देखो does सिंगुलर, has भी हमने सिंगुलर ही यूज किया क्योंकि यहाँ पे भी अभी भी इस वुमन की ही बात हो रही थी। That woman has moved to another hairdressers, वो कहीं और शिफ्ट हो गई है अभी। Next is have you got a book that is really.
That is really easy to read. That या which दोनों आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं. A book, we are talking about a book here, that's why we have used is. Next is I lent him The Old Man and the Sea. Again here we are talking about some kind of a book or novel. So I lent him that particular novel, which is really easy to read. Now here is your vocabulary part. और आज काफी अच्छे वर्ड्स हैं हमारे पास vocabulary में. The first word is constraint. Constraint यानी कि लिमिट लगा देना किसी भी चीज के ऊपर, थोड़ी सी रोकथाम लगा देना किसी भी चीज के ऊपर, तो वहां पे हम इस वर्ड को यूज करते हैं constraint. A thing which limits your freedom to do something, जो आपकी फ्रीडम के ऊपर लिमिट लगा देती है. और ये constraint कैसे भी हो सकते हैं, फिजिकल constraint, फाइनेंशियल constraint, पॉलिटिकल constraint, किसी भी जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं. Constraint is a noun, तो इसका प्लूरल हो जाएगा constraints. और इसके सिनोनिम में आप ये यूज कर सकते हो ऑब्वियसली restriction, और constraint जो है ये इसकी वर्ब हो गई. देखिए अभी इसी से मैं एक और वर्ड को रिलेट कर रही हूँ यहाँ पे. कंप्लेन हमारी वर्ब होती है, यानी एक्शन, यानी कि कंप्लेन अगर हम लिख रहे हैं दैट मीन्स शिकायत करना. कॉन्स्ट्रेन यहाँ पे ये भी वर्ब है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन लगाना. यहाँ दोनों में ही हमने टी को यूज नहीं किया है एंड में, लेकिन कॉन्स्ट्रेंट एंड में जैसे ही टी लगाया वो नाउन बन गया. अब ये होगी रोकथाम. और कंप्लेन में भी अगर हम एंड में टी को यूज कर देते हैं, अब ये हो गया हमारा नाउन, और अब इसका मीनिंग हो जाएगा शिकायत. बस. नेक्स्ट में आते हैं कंप्लाई विद समथिंग. कंप्लाई यानी कि पालन करना. कंप्लाई विद, कंप्लाई के साथ में हमेशा विद को यूज किया जाता है, और अभी हम पढ़ के आए हैं अबाइड बाय द रूल्स, और कंप्लाई विद द रूल्स या कंप्लाई विद एन ऑर्डर, कंप्लाई विद द लॉ. लेकिन अबाइड बाय द लॉ, अबाइड बाय द रूल्स, इनको आप याद करना, ये फिक्स्ड प्रपोजिशंस है हमारी, और इनका सबका मीनिंग यही है, टू ओबे, पालन करना. और कंप्लाई का जो नाउन है वो हो जाएगा कॉम्प्लायंस. नेक्स्ट है स्ट्रिंजेंट. स्ट्रिंजेंट आपने सुना होगा ना, कड़ी से कड़ी, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट. मैं इस तरह से लिख देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए. स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट ये लिखा है मैंने. तो कड़ी से कड़ी सजा, ये बहुत बार सुना होगा आपने मूवीज के डायलॉग्स में. तो वहां पे जो कड़ी से कड़ी है उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं स्ट्रिंजेंट. तो अभी आपने देखा, क्योंकि पनिशमेंट से पहले आया है, ये पनिशमेंट हमारा नाउन था, नाउन के पहले ये वर्ड इजीली फिट हो गया. दैट मीन्स दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है. तो स्ट्रिंजेंट यानी काफी कठोर, और ये लॉ के केस में भी हो सकता है, सिर्फ पनिशमेंट नहीं, कोई ऐसा सख्त कानून बना देना. स्ट्रिंजेंट लॉ, स्ट्रिंजेंट रूल जो काफी स्ट्रिक्ट हो. तो इसके सिनोनिम्स में आते हैं, इसके बहुत सारे हम सिनोनिम्स करेंगे. फर्स्ट तो हो जाएगा फर्म. फर्म का मीनिंग भी होता है कठोर. रिजिड, सीवियर, हार्श पनिशमेंट आपने सुना होगा, काफी कठोर पनिशमेंट, हार्श. इसके अलावा इनफ्लेक्सिबल, देखो एक वर्ड होता है फ्लेक्सिबल, यानी कि अपने हिसाब से जिसको हम मोड़ तोड़ सकते हैं. लेकिन इनफ्लेक्सिबल, इन लगते ही अब ये सख्त हो गई, अब इसको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता. इनफ्लेक्सिबल रूल्स, इनफ्लेक्सिबल लॉज, ये हम बोल सकते हैं. स्टिफ काफी अच्छा वर्ड है, दैट इज स्टिफ. इसके अलावा आपने सुना होगा ये बहुत बार, हार्ड एंड फास्ट. हार्ड एंड फास्ट ये एक मुहावरा, एक इडियम है ये. तो हार्ड एंड फास्ट का मीनिंग यही होता है कि बहुत सख्त होना. आपने बहुत जगह सुना होगा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ऐसा करो, मीन्स ऐसा कोई सख्त कानून नहीं है. तो वही है हार्ड एंड फास्ट. इसके अलावा आप यूज कर सकते हो अनकॉम्प्रोमाइजिंग. अनकॉम्प्रोमाइजिंग जिसको कॉम्प्रोमाइज ना किया जा सके, अगेन जिसको मैनिपुलेट ना किया जा सके. इसके अलावा आप ये भी यूज कर सकते हो रिगरस, जो यहाँ पे गिवन भी है, खैर इस पे भी आएंगे फिर से, लेकिन आप इसके सिनोनिम में इसको भी यूज कर सकते हो स्ट्रिंजेंट के में, रिगरस. तो ये सारे सिनोनिम्स थे. और हाँ, एक और बहुत अच्छा सिनोनिम मुझे अभी ध्यान आया जो न्यूज़पेपर में बहुत आपको मिलेगा, ड्रैकोनियन.
ड्रैकोनियन, जब ये एनआरसी वाला इशू आया था उस टाइम पे न्यूज़पेपर्स में ये वर्ड बहुत यूज हुआ था, ड्रैकोनियन लॉ, यानी कि काफी कठोर जो लॉ है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ड्रैकोनियन, काफी सीवियर। नेक्स्ट में आते हैं मीट द नीड्स ऑफ समबडी और समथिंग, सेटिस्फाई द नीड्स, किसी की जरूरतों के अनुसार हो कोई चीज तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं, मीट द नीड्स मीन्स सेटिस्फाई द नीड्स। नेक्स्ट है ऑक्यूपेंट, ये बना है ऑक्यूपाई, इस वर्ड से ऑक्यूपाई यानी कि कोई ये हम किसी पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, कोई चीज यहाँ रखी है दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर थिंग इज ऑक्यूपाइंग स्पेस, यानी कि वो यहाँ पे जगह घेरे हुए है वो चीज। और अगर मैं ये किसी पर्सन के लिए यूज करूं सॉरी, तो ये हो जाएगा जैसे अगर मैंने कोई रूम रेंट पे दे रखा है तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो ऑक्यूपाई ही तो उन्होंने कर रखा है उस रूम को, और उन लोगों ने क्योंकि उस रूम को ऑक्यूपाई कर रखा है उन लोगों को हम कहेंगे ऑक्यूपेंट, यानी कि जो पर्सन या जो ऑब्जेक्ट किसी जगह पे मौजूद होती है, उसको घेरे होते हैं, उस जगह को ऑक्यूपाई किए होती है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं ऑक्यूपेंट। यहाँ पे सिर्फ पर्सन की बात हो रही है जो कहीं रूम या बिल्डिंग में कहीं पे भी रहता हो, रेजिडेंट्स जो हैं उनके लिए भी हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं ऑक्यूपेंट। नेक्स्ट है रिग्रेस, तो रिग्रेस के हमने अभी ये देखिए स्ट्रिंजेंट के सिनोनिम में हमने रिग्रेस को काउंट किया था, लेकिन रिग्रेस का और एक और मीनिंग भी होता है। एक मीनिंग तो ये होता है काफी कठोर, काफी कड़े से कड़ा, एक मीनिंग तो होता है ये, एक और ये मीनिंग भी होता है कि किसी भी चीज को अगर हम केयरफुली पूरी ध्यान से अगर करते हैं, किसी भी काम को पूरा उस पर अटेंशन देके डिटेल में अगर हम जाते हैं उस काम को करने में, तो वहां पे भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं रिग्रेस, यानी कि डिटेल ओरिएंटेड अगर कोई चीज है वहां पे भी हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं रिग्रेस को। तो इसके जो डिटेल ओरिएंटेड जो सिनोनिम्स हैं वो देख लेते हैं, काफी यूज होता है, दैट इज मेटिकुलस, मेटिकुलस काफी बारीकी से जो निरीक्षण करते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज होता है, मेटिकुलस पीपल, मेटिकुलस पर्सन। इसके अलावा ये भी हो सकता है प्रिसाइज, ये वर्ड भी शायद मैं ले चुकी हूं इनमें वोकैबुलरी पार्ट में, प्रिसाइज, एक्यूरेट, जो एक्यूरेसी के साथ में कोई काम किया जाए, पंक्टिलियस, पंक्टिलियस, तो इन वर्ड्स को अच्छे से याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। नेक्स्ट है डिटर्मिन समथिंग, डिटर्मिन यानी कि किसी चीज को एग्जैक्टली कैलकुलेट करना, कैलकुलेट समथिंग एग्जैक्टली, और इसके सिनोनिम में आप ये भी यूज कर सकते हो दैट एस्टैब्लिश समथिंग। नेक्स्ट में आता है डायरेक्ट विथस्टैंड समथिंग, विथस्टैंड आप इसको इस तरह से देख सकते हो जैसे बहुत तेज हवा चल रही है लेकिन वहां पे उस टाइम में भी कोई पेड़ है वो ऐसे ही खड़ा है, मीन्स अब इसको है ना काफी तेज हवा भी इसको हिला नहीं पाई, इसको गिरा नहीं पाई, ये वहां पे स्टैंड किए हुए है, मीन्स दिस ट्री इज विथस्टैंडिंग इटसेल्फ, विद और लगा दो इसके आगे तो ये हो गया विथस्टैंड, यानी कि ये इतना स्ट्रोंग है कि ये किसी से भी कोई भी चीज उसको हार्म नहीं पहुंचा सकी, चाहे वो हीट हो, कोल्ड हो, प्रेशर हो, हवा का जो प्रेशर आ रहा था उससे भी नहीं गिरा, और यानी कि इसने रेजिस्ट किया है, इसके अगेंस्ट, इस हवा के अगेंस्ट इसने रेजिस्ट किया है, तो रेजिस्ट भी आप इसके सिनोनिम में यूज कर सकते हो। एक और है स्टैंड अप टू समथिंग, अगेन वही चीज है कि ये खड़ा रहा है बिना हिले, तो अब ये आपको अच्छे से याद रहेगा विथस्टैंड। और इसी से मिलता जुलता ये वर्ड है नेक्स्ट, दैट इज स्वे। अब यहां देखिए स्वे, स्वे इसका उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, स्वे का मीनिंग हो जाता है मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, जो हिलने लग जाए उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं स्वे। तो अब यहाँ पे अगर यही ट्री अगर हिलने लग जाता, अगर वो विथस्टैंड नहीं कर पाता, तो वहां पे हम ये कह सकते थे दैट द ट्री वाज स्वेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, कि उसको जो पेड़ है उसको हिला दिया गया स्ट्रॉन्ग विंड्स के द्वारा। तो स्वे इसके खैर और भी मीनिंग होते हैं, चलो उनको भी कवर कर ही लेते हैं। एक मीनिंग तो ये हो गया इजीली आराम से मीन्स हिलते रहना, दूसरा इसका मीनिंग ये हो जाएगा जो मैंने शायद प्रीवियस सेशन में कवर किया था, टू इन्फ्लुएंस, टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल। अब अगर कोई इन्फ्लुएंस में आ गया तो ऑब्वियसली वो आपके कंट्रोल में ही आ गया, तो इसका एक मीनिंग ये भी होता है। तो इसके सिनोनिम्स भी हम कर ही लेते हैं अभी। इसके सिनोनिम्स में आप ये यूज कर सकते हो डोमिनेट,
डोमिनेट। इसके अलावा अफेक्ट, अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना। अफेक्ट के अलावा मैनिपुलेट, मैनिपुलेट। और अगर आपने हिस्ट्री इंग्लिश में पढ़ी है स्कूल टाइम में या कॉलेज में, हिस्ट्री अगर आपने इंग्लिश में पढ़ी है तो आपने ये देखा होगा स्वे, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है हिंदी में प्रभुता, अपनी प्रभुता जमाना कहीं पे भी, संप्रभुता, तो वो यही होता है स्वे सॉरी, तो यानी कि गवर्न। ये भी हम यूज कर सकते हैं स्वे के सिनोनिम्स में। इतने सारे हमने सिनोनिम्स किए और इसको हम अक्सर है ना दो तरह से यूज करते हैं। एक तो ये टू गेन स्वे ओवर, टू गेन स्वे ओवर, किसी के ऊपर प्रभुता जमाना। एक इसका उल्टा ये हो जाएगा टू कम अंडर, टू कम अंडर द स्वे ऑफ, टू कम अंडर द स्वे ऑफ, किसी की प्रभुता के नीचे दब जाना, आ जाना, यानी कोई और हम पे कंट्रोल कर ले उस केस में। जैसे एग्जांपल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल आप ये लिख सकते हो दैट द ब्रिटिश, मैं सिर्फ बी लिख रही हूं यहाँ पे, द ब्रिटिश गेन्ड, क्योंकि पास्ट की बात है, गेन्ड स्वे ओवर द होल इंडिया during the era of colonization, era of colonialization, स्पेलिंग करेक्ट है हाँ, द एरा ऑफ कॉलोनाइजेशन। और इसी का अगर मुझे उल्टा बोलना हो कि अभी यहाँ पे हमने ये कहा है कि जो ब्रिटिश हैं उन्होंने पूरे इंडिया पे अपनी प्रभुता जमा ली थी एरा, ड्यूरिंग द एरा ऑफ कॉलोनाइजेशन। इसी को अगर मैं ये कहूं कि इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स के प्रभुता के नीचे आ गया था, तो वहां पे हम इसको यूज कर लेंगे टू कम अंडर, तो ये हो जाएगा इंडिया केम अंडर, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं, खैर मैं वैसे ही बोल देती हूँ, इंडिया केम अंडर द स्वे ऑफ द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द एरा ऑफ कॉलोनाइजेशन। नेक्स्ट पे आते हैं और इनको आप जरूर नोट डाउन करना दोनों को ही। नेक्स्ट है काउंटर एक्ट समथिंग, किसी चीज के पहले काउंटर अगर ये लग जाए तो काउंटर का मीनिंग हो जाता है ऑपोजिट, उसका उल्टा हो जाना। एक्ट, एक्ट का हो गया उल्टा काउंटर एक्ट, यानी कि उसके बदले में जो सामने से रिएक्शन आया, जो प्रतिक्रिया आई हो, वो हो जाता है काउंटर एक्ट। डू समथिंग टू रिड्यूस और प्रिवेंट द बैड इफेक्ट्स ऑफ समथिंग, यानी कि पहले कोई काम हुआ है उसके बुरे नतीजों को रोकने के लिए कोई एक और काम किया जाए जो उसको काउंटर करे, तो उसको हम बोलते हैं काउंटर एक्ट। नेक्स्ट है मोशन, मोशन का आपको पता ही है, मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। लास्ट वर्ड है एस्थेटिक, इसको एक्चुअल में ना ई से प्रोनाउंस किया जाता है एस्थेटिक। तो एस्थेटिक ये ब्यूटी अपीयरेंस से कंसर्न्ड होता है, मीन्स कोई चीज कैसी दिखती है, जैसे कोई बिल्डिंग की ही बात कर ले तो वो बिल्डिंग कैसे दिख रही है, और अगर आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो उस बिल्डिंग की ब्यूटी को, तो ये इसमें उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं एस्थेटिक, एस्थेटिक सॉरी। अभी इन सभी वर्ड्स को हम एक साथ यूज करेंगे एक पैसेज में, एंड दिस पैसेज इज अबाउट स्काईस्क्रेपर्स। स्काईस्क्रेपर्स, ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है ना जो आसमान को छूती हैं, इनके लिए ये वर्ड यूज होता है स्काईस्क्रेपर। तो हेडिंग है इसके डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। एवरी स्काईस्क्रेपर इज डिजाइन्ड विद इन फिजिकल कॉन्स्टेंट्स, कि जितनी भी स्काईस्क्रेपर्स हैं इन सभी को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि फिजिकल कॉन्स्टेंट्स को ध्यान में रखते हुए, कि फिजिकली इन पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं वो ध्यान में रखते हुए इनको डिजाइन किया जाता है। और फिजिकल कॉन्स्टेंट्स में आ जाएंगे सच एज क्लाइमेट, जियोलॉजी, and then has to comply with the most stringent safety regulations। और इनको एक बार तो हम इनको देखते हैं फिजिकल कॉन्स्टेंट्स को, और अगर इनसे भी ये आगे निकल गई, इनको भी इन्होंने कंट्रोल कर लिया, जो स्काईस्क्रेपर है, बिल्डिंग्स हैं इन्होंने, उसके बाद में इनको कुछ रूल्स हैं जो सेफ्टी, कुछ सेफ्टी रेगुलेशन है जिनको फॉलो करना होता है, जिनसे कंप्लाई विद करना होता है। और ये जो सेफ्टी रेगुलेशंस हैं काफी स्ट्रिंजेंट, काफी कड़े होते हैं। नेक्स्ट है इट ऑल्सो हैज टू मीट द नीड्स ऑफ इट्स ऑक्यूपेंट्स, और इसको अपने जो ऑक्यूपेंट्स है, जो इनमें रहने वाले लोग होंगे, जो रेजिडेंट्स होंगे, उनकी नीड्स को भी इनको कंप्लीट करना होगा, उनकी जरूरतों को भी इन्हें पूरा करना होगा। नेक्स्ट है एंड सेटिस्फाई द एस्थेटिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ ओनर एंड आर्किटेक्ट। और एस्थेटिक ऑब्जेक्टिव
यानी कि ये दिखनी भी अच्छी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, तो इसको भी इसे सेटिस्फाई करना होगा स्काई स्क्रैपर को। नेक्स्ट है डिजाइन इंजीनियर्स ट्रांसलेट्स द आर्किटेक्ट्स विजन इनटू अ डिटेल्ड प्लान दैट इज स्ट्रक्चरली साउंड। तो यहाँ पे साउंड मीन्स इंटैक्ट, इंटैक्ट यानी कि एकदम सही है जो, तो ये काफी इजी था ये सेंटेंस। नेक्स्ट पे आते हैं जहां वोकैब यूज हो रही है। एज ईच स्काई स्क्रैपर इज यूनिक, हर एक यूनिक होती है अपने आप में। मॉडल्स ऑफ द बिल्डिंग मस्ट अंडरगो, जितने भी मॉडल्स बनाए जाते हैं इनके बिल्डिंग्स के, उन्हें निकलना होता है, गुजरना होता है अंडरगो रिगरस टेस्ट, बहुत सीवियर, बहुत कड़े उन पे टेस्ट होते हैं। और यहाँ पे रिगरस यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि बहुत बारीकी से उनको देखा जाता है, उनको एग्जामिन किया जाता है उन टेस्ट को इन विंड टनल्स, हवा के जो टेस्ट होते हैं विंड टनल्स के, टू डिटरमिन whether they can withstand the effects of high winds, कि क्या ये अगर तेज हवा चलेंगी तो क्या ये इसी तरह से उनको रेजिस्ट कर पाएंगी, खड़ी रह पाएंगी उनके अगेंस्ट, या फिर गिर जाएंगी। ये भी टेस्ट उनको क्लियर करने होते हैं। इफ टेस्ट शो द बिल्डिंग विल स्वे एक्सेसिवली, अगर टेस्ट में ये सामने आता है कि जो बिल्डिंग है ये काफी हिल रही है, मीन्स जो सैंपल ये मॉडल तैयार करते हैं पहले कि वो हिल रहा है, तो उस केस में क्या होता है, डिजाइनर्स में एड मैकेनिकल डिवाइसेस, उस केस में डिजाइनर्स को मैकेनिकल डिवाइसेस अलग से ऐड करनी पड़ती है यहाँ पे, टू काउंटर एक्ट और रिस्ट्रिक्ट मोशन, कि वो जो मोशन था, जो ये हिल रही थी बिल्डिंग, उसको काउंटर एक्ट करने के लिए, यानी कि उसको एक जगह पे सही रखने के लिए, उस मोशन को रिस्ट्रिक्ट, उस मोशन को रोकने के लिए उन्हें मैकेनिकल डिवाइसेस का सहारा लेना पड़ता है। So guys, this was your passage and here is your today's task कि आपको रिवाइज करना है रिलेटिव प्रोनाउंस को जितना अब तक हुआ है 2 सेशंस में। So guys, thanks for listening and just keep practicing.